Assalamu alaikum. How are you all? Hope so you all are good. By the grace of Allah Almighty. Okay. In our previous lecture, we discussed about the importance of the land and water, right? And we discussed in the detail. So today we are going to know about the terms that are related to water and land. But before going to those terms, if there's any confusion left in your mind related to previous lesson, you can ask me questions. Okay, hope so there shouldn't be any confusion left, but if still there's still some any question, so you can ask me. Okay, so let's start our today's lesson. In today's lesson, we are going to learn about terms that are related to water and land. So you should get able to tell with what is the difference when we talk about or when we see these words: ocean or seas, storm and flood, hills and mountains, plateau and plains, deserts, islands and lakes. These are some words that we should know when we have to see these words and what is the difference between these words. There's a little bit difference, both are having the same meaning, but both are going but but both the words that I have said, but their according to their meaning they are used differently. So the first thing that we are going to discuss is the difference between ocean and sea. Ocean and sea both mean samandar, but oceans are the bigger, but and on the other hand sea are smaller. So sea are smaller in size and less deeper, while oceans are vast in size and are very much deeper than the sea. Sea cover the small surface but rather than the oceans. There are many seas and rivers in the world, but there are just 5 main oceans in the world. All the seas and rivers enter through different sources into those oceans. Okay, like if we talk about the ocean, there are um, Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean. These are some oceans that in which all the rivers and sea enters, but through different sources. So this was a little bit difference between ocean and sea. Same is the case with their taste as well. We have listened about some seas and some oceans that they are having sweet or salty water, right, in taste, right? But mostly sea and ocean water are salty. Why? Sea water are less salty, they are normal, they are not as much as salty than the ocean water. So same is the case with the water that is in sea and ocean, that is always in moving condition. So this is the reason why there are always waves found on the surface of ocean and seas, and these waves are the reasons of the storm or flood which came in the sea or ocean. क्योंकि जब
समंदर के इर्द गिर्द हवा बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, वो लहरों को प्रेशर देती है। जब लहरों में प्रेशर आता है, उस प्रेशर की वजह से जो लहरें हैं वो अपने बैरियर से आगे चली, जब लहरें अपने प्रेशर से आगे चली जाएंगी, उस जगह से आगे चली जाएंगी, तो वो क्या होता है, वो रीज़न होती है सैलाब की या तूफ़ान की। और इन्हीं वेव्स, इन्हीं लहरों की वजह से ही, ये लहरों पे डिपेंड करता है कि इर्द गिर्द की जो हवा है वो उन लहरों को कितनी दूर तक लेके जाती है। ओके, सो कमिंग टुवर्ड्स लेसन नंबर 2, पेज नंबर 5. On this page we are going to know about all those terms that I have mentioned in the starting of this lecture. Okay, so let's get started. Large areas of water on the surface are called oceans. मतलब ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से में अगर बहुत ज़्यादा पानी है तो उसे हम ओशंस कहते हैं, बहरिया, जिसे हम कहते हैं बहरिया, अलकाहिल, बहर. स्मॉलर एरियाज आर कॉल्ड सीज, और वही स्मॉलर एरियाज मतलब यहाँ पे पानी ओशंस से कम हो, ओशंस जितना नहीं, ओशन से थोड़ा कम हो, उन्हें हम कहते हैं समंदर. सी वाटर इज साल्टी, समंदर का पानी जो है वो नमकीन होता है. सम पार्ट्स ऑफ द ओशन आर वेरी डीप, कुछ पार्ट जो होते हैं भरे समंदर के वो बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं. देयर आर वेव्स ऑन द सरफेस, हमेशा उनकी सतह पे वेव्स होती हैं, लहरें हो रही होती हैं, ऑफ ओशंस एंड सीज. द वाटर इन द सी इज़ ऑलवेज मूविंग अबाउट, समंदर का जो पानी होता है वो हमेशा हरकत में रहता है. दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड करंट्स, तो जो पानी की जो मूवमेंट होती है, जो वेव्स मूव कर रही होती है, इन वेव्स को, इस मूविंग वाटर को हम लोग करंट कहते हैं. व्हेन देयर इज़ अ स्टॉर्म एट सी, जब भी तूफ़ान आता है समंदर में, द विंड काजेस हाई एंड रफ वेव्स, तो जो हवा होती है, तेज़ हवा होती है, वो ऊंची और बहुत रफ सी लहरें उठाती है. यू शुड नॉट गो टू द सी साइड इन स्टॉर्मी वेदर, आप लोगों को तूफ़ानी वेदर में, तूफ़ानी मौसम में समुद्र की साइड पे नहीं जाना था. इट इज़ डेंजरस, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो लहरें उठ रही हैं समुद्र पे वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकती हैं जो उसके इर्द गिर्द के एरिया से. द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन इज़ द मैरिना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन. इट इज़ 11,022 मीटर्स डीप. पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है और सबसे ज़्यादा डीपेस्ट, सबसे गहराई भी इसी में पाई जाती है, जिसे हम मैरिना ट्रेंच कहते हैं. और इसकी जो गहराई है वो 11,022 मीटर्स डीप है, मतलब वो इतना ज़्यादा गहरा है. So this was all about oceans and seas. Now, on the land there are hills and mountains. ज़मीन पर पहाड़ियाँ और पहाड़ होते हैं. Hills are not as high and steep as mountains, कि जो पहाड़ियाँ होती हैं वो पहाड़ों की तरह इतनी ऊंची नहीं होती जितनी के पहाड़ होते हैं. पहाड़ों को हम लोग माउंटेन्स कहते हैं, जबकि जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें हम हिल्स कहते हैं. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन माउंटेन्स एंड हिल्स. ओके, द लो लैंड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन इज़ कॉल्ड वैली. वो ज़मीन जो पहाड़ियों और पहाड़ों के दरमियान में होती है उसे हम वैली कहते हैं, यानी वादी कहते हैं. अ हाई एरिया ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड प्लेटू. वो ज़मीन जो ऊंचाई पे होती है, पहाड़ियों के पास जो ऊंचाई पे ज़मीन होती है उसे हम कहते हैं प्लेटू. फ्लैट लैंड्स एट लोअर लेवल्स आर कॉल्ड प्लेन्स. प्लेन्स हम लोग कहते हैं मैदानी इलाकों को, क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन होते हैं, वो ज़्यादा नीचे लेवल पे होते हैं, इसलिए हम उन्हें प्लेन्स कहते हैं. सम पार्ट ऑफ द लैंड हैव वेरी लिटिल वाटर. कुछ
ऐसे भी ज़मीन के हिस्से हैं जहाँ पे बहुत थोड़ा पानी होता है। दीज प्लेसेस आर ऑफन सैंडी एंड रॉकी। ये जो होती हैं ये रेतली और पथरीली ज़मीनें होती हैं एंड आर कॉल्ड डेजर्ट्स, और हम इन्हें सहरा कहते हैं, जहाँ पे हर दफ़ा हमें रेत ही रेत नज़र आती है और पानी बहुत कम होता है। इन सम पार्ट ऑफ द अर्थ देयर इज़ अ लॉट ऑफ आइस। ज़मीन पर कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है एंड स्नो, एंड इट इज़ वेरी कोल्ड, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। वेरी हाई माउंटेन्स आर ऑफन कवर्ड बाय स्नो। जो बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं वो अक्सर और बेशतर बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। इन अदर पार्ट्स देयर आर थिक फॉरेस्ट। अगर एक साइड पे हाई माउंटेन्स की हम लोग बात करते हैं तो दूसरी साइड पे हम लोग जंगलों को कैसे बोल सकते हैं? अगर एक साइड पे मैदानी इलाके हैं जहाँ पे पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं तो दूसरे साइड पे हमारे थिक फॉरेस्ट भी हैं, मतलब बहुत गहरे जंगल हैं। एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। ज़मीन का वो हिस्सा जो हर तरफ से पानी के साथ घिरा हुआ हो इज़ कॉल्ड आइलैंड। हम उसे आइलैंड यानी जज़ीरा कहते हैं। अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड। पानी का वो हिस्सा जो ज़मीन से घिरा हुआ हो, मतलब उसके इर्द गिर्द सिर्फ ज़मीन ही हो और पानी दरमियान में हो बस। ऑन ऑल साइड इज़ कॉल्ड लेक। तो हम उसे तालाब कहते हैं, यानी छोटे छोटे तालाब होते हैं, ज़मीन दरमियान में छोटा सा तालाब होता है और उसके इर्द गिर्द सिर्फ ज़मीन ही ज़मीन होती है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइलैंड एंड लेक। आइलैंड हम लोग कहते हैं उसे जिसमें एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा जो है वो पानी के साथ घिरा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि समंदर में अक्सर और बेशतर ऐसे होते हैं कि दरमियान में छोटी सी ज़मीन होती है, फॉरेस्ट होता है और उसके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी होता है, वो होता है आइलैंड। और लेक वो होता है वो पानी, थोड़ा सा पानी जो ज़मीन से घिरा हुआ हो। वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स। हमें ताज़ा पानी मिलता है लेक्स तालाबों से और दरियाओं से। रिवर बिगिंस ऑन द माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन इनटू लेक्स और द सी। इसमें जो जानने वाली बात वो ये है, फर्स्ट थिंग रिवर बिगिंस। When river begins from the mountains, जब रिवर्स जो है वो पहाड़ों के दरमियान से निकलता है, रिवर्स एंटर इनटू सी। जो रिवर है वो फिर सी के अंदर, समंदर के अंदर आता है। आफ्टर दैट सी एंटर्स इनटू ओशन, और फिर जो सी हैं वो ओशंस में जाते हैं। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि जो रिवर्स हैं वो माउंटेन्स के दरमियान से निकल के नीचे की तरफ तालाबों और समंदरों की तरफ आते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर लेक्स एंड रिवर्स क्लीन। ये ज़रूरी है कि हम अपने तालाब को और दरियाओं को साफ़ सुथरा रखें। क्यों? बिकॉज देयर इज़ अ लाइफ विच इज़ लिविंग इनसाइड द वाटर, राइट। मतलब वो आबी मखलूक, वो पानी की जानदार जो पानी के अंदर रहते हैं, अगर हमें हमारी सांस के लिए साफ़ सुथरी हवा ज़रूरी है तो उनके वहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए भी पानी का साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। Polluted water causes animals and plant life in it to become diseased and die out. This upsets the cycle of nature and causes many problems. कि जो गंदा पानी होता है, अगर हम पानी को गंदा करते हैं या वो पानी जो फैक्ट्री से निकल के हमारे रिवर से, सीज से और ओशन की तरफ जाता है, वो हमारी जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स वो जो उनके अंदर ग्रो करते हैं पानी के अंदर, और एनिमल्स वो जो पानी के अंदर रहते हैं, और वो एनिमल्स जो वहाँ से पानी पीते हैं, वो गंदा पानी उन दोनों एनिमल्स को इफ़ेक्ट करता है, वो उनको बीमार कर देते हैं और उसके बाद उन्हें ख़त्म भी कर सकते हैं। और ये अगर ये जानवर यूँ ही ख़त्म होते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये नापैद होते जाएंगे, ये इनका मिलना मुश्किल होता जाएगा, और जिसकी वजह से बहुत से जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे को खा जाते हैं, राइट, एक दूसरे को प्रे करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से हमारे जो डिजीज़ होती हैं या बहुत से हमारे जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं उन जानवर की, जैसे वो कट ऑफ हो जाते हैं। सो ये जो साइकिल चल रहा होता है ये हमें बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट कर सकता है, सिर्फ
गंदे पानी की वजह से। we all should take care of this, that when we are near to a lake or sea, we shouldn't throw wrappers or anything dirty in that water. Okay, so this was all about our today's lesson. Hope so. Thank you.